gear ratio is 2. If the pitch expressed in module is 5 mm, the pitch line speed is 1.2 meter per second. Assuming addendum as standard and equal to 1 module, find the angle turn through by pinion when one pair of teeth is in mesh. And number 2, the maximum velocity of sliding. Okay, so the first thing, to solve any problem of gear drive, what we have to do, just write it down what is given in the questions and what is we have to find out. Okay, so हमको क्या निकालना है, ठीक है, ये चीज हमको इसमें पता है, हमको निकालना है एंगल टर्न थ्रू बाय पिनियन. ओके, this one, and the maximum velocity of sliding. Okay, so now we'll write what is given in the problem. Okay, so what is given? The pressure angle phi, the pressure angle phi is equal to 20 degree, is equal to 20 degree. Number of teeth on pinion is 20. Okay, gear ratio is given as 2, and we know that the gear ratio is the number of teeth on gear and number of teeth on the pinion. So we can calculate the capital T is equal to 2 multiplied by 20. So capital T is equal to 40. Okay, so 40 is the number of teeth on gear and T is the number of teeth on pinion. Okay, and module is given as M is represented by module. Module is given as 5 mm, 5 mm, and velocity is given as 1.2 meter per second, 1.2 meter per second, and a very important addendum is given as addendum is given as 1 module, 1 m, so that is all equal to 5 mm. Okay, so now the first point which I have to calculate is angle turn through by pinion when one pair teeth in mesh. अब ये होता क्या है, सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि एंगल टर्न क्या कैसे निकलेगा. ओके, सो एंगल टर्न जो होता है वो क्या होता है, एंगल टर्न थ्रू बाय पिनियन is equal to length of arc of contact multiplied by 360 degree upon circumference of pinion. Circumference of pinion. Okay, so this is the formula. The angle turn through by the pinion is length of arc of contact multi 360 multi circumference of pinion. अब देखिए, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ से ये चीज पता चल गई, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना पड़ेगा एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ पिनियन, सो दैट वी कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम्स. ओके, सो अब देखिए, हमको पता होता है कि R इज इक्वल टू mt बाई 2, मॉड्यूल इज 5, m इज इक्वल टू 20 डिग्री. ओके, m is equal to 20 degree, so we can put it in this equation and we will find the number of, sorry, the radius. So m is 5 module, t is 20 divided by 2, so it will comes out to be 50. Okay, so 50 mm. Okay, so it is 50 mm, and the pitch circle diameter capital R is equal to mt by 2,
So this is 5. Capital T is 40 divided by 2. So it is 100 mm. Okay. So now we have calculated स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। अब देखिए, अब मैं क्या करूं, अब मैं अडेंडम रेडियस ही निकाल लेता हूं। तो आर ए अडेंडम रेडियस ऑफ पिनियन क्या होगा, आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल प्लस अडेंडम। आर भी मुझे पता है और मुझे अडेंडम पता है। आर कितना है, आर आया 50 और अडेंडम क्या है, दैट इज 1 मॉड्यूल 5 mm, तो ये हो गया 55 mm। क्लियर है। सिमिलरली आर ए निकालें, कैपिटल आर ए, तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस अडेंडम। तो कैपिटल आर कितना होता है, कैपिटल आर आया हमारा 100, अडेंडम 5 है, तो ये हो जाएगा 105 mm। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अब मुझे पता होता है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर मुझे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए तो क्या चाहिए था, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहां से मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रीसेस प्लस लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच। तो यहां पर मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस आर साइन फाइव प्लस अंडर रूट ऑफ आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस आर साइन फाइव। क्लियर है। ये चीज आ गई समझ में, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ मैं अपनी वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है, ये पुट करता हूँ। तो यहाँ से आएगा कैपिटल आर ए कितना है, आ रहा 105 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव कितना था, फाइव इज 20 डिग्री प्रेशर एंगल माइनस आर इज 100 इंटू साइन 20 प्लस अंडर रूट ऑफ आर ए इज 55 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 20 माइनस 50 साइन 20। तो जब इस वाले टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द 12.65 mm प्लस दिस इज 24.15 mm। तो यहाँ से लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगी हमारी, सॉरी दिस इज 11, so this is comes out to be okay, ये निकल के आएगा अपना 12.65 प्लस ये निकल के आएगा 11.5। 12 जब ऐड करोगे तो आ जाएगा कितना, 24.15 mm। क्लियर है। तो ये आ गया लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। अब मेरे को चाहिए लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। ये होगा आपका लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज 24.15 डिवाइड बाई कॉस फाइव, फाइव है 20 डिग्री। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 25.7।
25.7। क्लियर है? अब हमको क्या चाहिए? सर्कमफेरेंस ऑफ पिनियन। सर्कमफेरेंस ऑफ पिनियन, ये क्या होगा? दिस इज 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एस 50, मतलब 100 पाई। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है द एंगल टर्न बाय पिनियन, that is length of arc of contact, that is 25.7 multiplied by 360 divided by 100 pi. So you will get answer is 29.45 degrees. So this is the answer. Okay, now we'll come up to our second part. So in second part we have to calculate the maximum velocity of sliding. Okay, so maximum velocity of sliding क्या होगी? Maximum velocity of sliding, ये क्या होगा? Maximum velocity of sliding ये होगा आपका ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू KP। KP इज लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने? 12.5। अब मेरे को चाहिए ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 क्या होगा? देखो हमको पता होता V इज इक्वल टू आर ओमेगा, दैट इज ओमेगा 1 आर। ये हो जाएगा ओमेगा 2 कैपिटल आर। V की वैल्यू पता है, आर पता है, कैपिटल, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकल जाएंगे, तो यहाँ से ओमेगा 1 आ जाएगा। V कितना था आपका? V था V कितना था क्वेश्चन में? पीछे चल के देखना पड़ेगा। 1.2 मीटर पर सेकेंड। मैं जब इसको mm में कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 120 डिवाइड बाई आर। आर इज 5, आंसर आ जाएगा 24 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा 2 कितना है? ओमेगा 2 120 डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 12 रेडियन पर सेकेंड। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं 24 प्लस 12 इंटू केपी इज 12.65। तो आपका आंसर आ जाएगा 4455.4 mm पर सेकेंड। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट और माय डियर फ्रेंड, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट में, ठीक है, यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल से फॉर्मूलेज हैं, उनके बेसिस पर हम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी जिसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर 2 है जो सिमिलर प्रॉब्लम्स है, इसको देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो प्रॉब्लम 2 बोलती है अ पेयर ऑफ गियर हैविंग 40 एंड 20 टीथ रेस्पेक्टिवली आर रोटेटिंग इन अ मैश, द स्पीड ऑफ ए स्मॉलर बीइंग 2000 आरपीएम। द स्पीड ऑफ ए स्मॉलर बीइंग, ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये पिनियन की वेलोसिटी दे रखी है, पिनियन का जो वेलोसिटी है वो कितना है? 2000 आरपीएम है। डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग बिटवीन द गियर टीथ फेसेस एट द पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट एट द पिच पॉइंट एंड एट द पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट। ठीक है, तो देखो जब हमने आपको डेरिवेशन किया था टू अवॉइड द इंटरफेरेंस, तो हमने चेक किया था। देखिए आपको याद होगा कि जब हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो देखो ये तो होता है हमारा पिच सर्कल, ठीक है, और कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो यहाँ से पास करता है। तो देखो एक पॉइंट निकल कर आता है आपका के, ये होता है पॉइंट पी, और एक ये पॉइंट होता है एल। तो बोल रहा है एट दी पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट। एंगेजमेंट कहाँ करता है? ये पॉइंट पर एंगेजमेंट होता है। इसी को आप बोलते हो केपी इज अ पाथ ऑफ अप्रोच
and then PL at the point of disengagement. This is at point और at the pitch point. At the pitch point ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। तो ये तो हमें देख के पता चल रहा है कि पिच पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, 0। क्लियर। तो हमको KP निकालना है, एट द पॉइंट L निकालना है। क्लियर है, ठीक है। ऑफ दी इफ द गियर इज द स्मॉलर गियर इज ड्राइवर, दैट मींस पिनियन को ड्राइवर बनाया हुआ है, ठीक है। एज्यूम दैट द गियर टीथ इज 20 डिग्री इनवोल्यूट फॉर्म। 20 डिग्री प्रेशर एंगल कितना हो गया, 20 डिग्री। अडेंडम लेंथ इज 5 mm एंड मॉड्यूल इज 5 mm, मतलब दोनों को अडेंडम और मॉड्यूल फिर से बराबर दिया हुआ। आल्सो फाइंड द एंगल थ्रू विच द पिनियन टर्न्स व्हाइल एनी पेयर ऑफ टीथ, मतलब फिर से निकालना पड़ेगा, जो पुराना क्वेश्चन है वैसा ही है ये वाला प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहली कंडीशन ये कि क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, कैपिटल नंबर ऑफ टीथ इज इक्वल टू 40, ठीक है। स्मॉल टी कितना देके रखा हुआ उसने, स्मॉल टी इज 20, ठीक है। और द स्मॉलर दैट इज पिनियन रोटेट करेगा, तो इसको मैंने नाम दे दिया N1 पिनियन के लिए, और ये किससे रोटेट कर रहा है, 2000 RPM से, ठीक है। तो मैं इसका ओमेगा निकालूंगा, तो ओमेगा 1 क्या होता है, 2 पाई N/60, ओके। तो यहां से जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 209.5 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है, ठीक है। प्रेशर एंगल फाई उसने आपको दिया 20 डिग्री, गुड। अडेंडम की वैल्यू दे रखी है, अडेंडम दे दिया 5 mm, 5 mm एंड मॉड्यूल M इज इक्वल टू 5 mm, ओके। ये दे दिया आपने, ठीक है। अब देखिए ओमेगा 1 मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो जो गियर रेशियो होता है, ठीक है, गियर रेशियो क्या होता है, गियर रेशियो होता है आपका कैपिटल T बाई स्मॉल टी, दैट इज इक्वल टू कैपिटल T बाई स्मॉल टी इज इक्वल टू ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1, ओके। सो सॉरी गड़बड़ हो गया, एक सेकंड रेस करने दीजिए, ठीक है। देखिए गियर रेशियो जो है वो क्या होता है आपका, अगर नंबर ऑफ गियर टीथ, कैपिटल टी क्या है, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, तो ओमेगा 2 जो वेलोसिटी है वो किसमें है, ओमेगा 2, और नीचे क्या आएगा, सॉरी ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, वेलोसिटी रिवर्स होती है, नंबर ऑफ टीथ और रेडियस सेम होता है। तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा 2 निकालूं तो ओमेगा 2 की वैल्यू क्या आएगी कि स्मॉल टी बाई कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका ओमेगा 2 निकल जाएगा। तो स्मॉल टी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल टी इज 20 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 209.5। तो यहाँ से आपका जो ओमेगा 2 आएगा वो आ जाएगा आपका कितना, 104.75 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है कि गियर रेशियो जो है वो क्या होता है, कैपिटल टी मतलब में द नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर टू द नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, ठीक है। और अगर इसका हम रिलेशन निकालेंगे किससे, आपकी स्पीड से, तो ये क्या हो जाएगा कि अगर मैंने गियर ऊपर तो पिनियन अपॉन गियर हो जाएगा, ठीक है, पिनियन अपॉन गियर। और रेडियस के टर्म्स में लिखते हैं तो रेडियस फिर कैपिटल आर बाई स्मॉल आर ही आती। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, अब हमको चाहिए स्मॉल आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू MT बाई 2, तो ये आ जाएगा M इज 5, स्मॉल टी इज 20 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया आपका, दिस इज 50, ओके 50 mm। और कैपिटल आर आ जाएगा MT बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 5 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, so this is 100 mm। क्लियर है। So capital R, small r. Now addendum radius. So small ra is equal to r plus addendum. R कितना आया है, r is 50 plus 5, this is 55
and capital RA is equal to capital R plus addendum. So this is 100 plus 5, so it is 100.05 mm. Clear है? Okay. Now the engagement point, so मुझे चाहिए KP, ठीक है? तो फिर से KP क्या हो जाएगा? KP is अंडर रूट ऑफ RA स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस R साइन फाई। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से KP की वैल्यू कितनी आएगी? ये आ जाएगी 12.65 mm, ठीक है? और PL की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो मैं PL की वैल्यू क्या लिखूंगा? तो PL इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ स्मॉल RA स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस R साइन फाई। तो जब मैं इसको पुट करूंगा तो यहाँ से PL की वैल्यू आ जाएगी 11.5 mm। क्लियर है? तो सिमिलर आंसर, ये एक्चुअली जो डेटा है वो सेम हो गया, इसलिए आपको लग रहा है कि आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है? अब देखिए, अब उसने हमसे पूछा था कि हमको क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, ठीक है? कहाँ कहाँ पर एट द एंगेजमेंट, तो मुझे लिखूंगा VS एट दिस एंगेजमेंट के, तो ये क्या हो जाएगा? ω1 प्लस ω2 इंटू KP। क्लियर है? तो ω1 प्लस ω2, ω1 कितना आया था? 209.5 प्लस ω1 कितना आया था? 104.75 मल्टीप्लाइड बाई KP कितना है? KP आया इस 12.65। तो यहाँ से VSK आ जाएगा आपका 3975 mm पर सेकेंड। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा उसने क्या पूछा था? एट दी पिच पॉइंट, तो VSP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि पिच पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी जाएगी? 0, क्योंकि P का P से डिस्टेंस कितना होगा? वो 0 हो जाएगा। इसके बाद उसने पूछा VSL, ठीक है? तो VSL निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? वो आएगा ω1 प्लस ω2 इंटू PL, ठीक है? तो जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 3614 mm पर सेकेंड। क्लियर है? ये हो गया। अब बी पार्ट क्या था आपका? एंगल टर्न, एंगल टर्न्ड बाय द पिनियन, टर्न बाय द पिनियन। तो वो क्या होता है? वो आपको पता है, दैट इज आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज लेंथ ऑफ arc of contact, arc of contact divided by circumference of pinion, that is 2 pi r multiplied by 360। तो मुझे चाहिए लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट होगा KP प्लस PL डिवाइड बाई cos फाई। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा 24.15 डिवाइड बाई cos 20, तो ये आ जाएगा 20 कितना आ जाएगा? 25.7। क्लियर है? 25 तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे अपन लोग, तो आ जाएगा 25.7 मल्टीप्लाइड बाई 360 डिवाइड बाई 2 पाई एंड R is 50। So after solve we will get 29.45 degree. Okay.